کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جس کے جوانوں کے قدموں سے زمین کانپتی تھی، جو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ وہ قوم آج کہاں ہے؟ ان کے محل کہاں ہیں؟ ان کی طاقت کہاں ہے؟ ان کا نام و نشان کہاں ہے؟ صرف ریت کا سمندر باقی رہ گیا، صرف خاموشی باقی رہ گئی، صرف ایک سبق باقی رہ گیا کہ جب انسان اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے، جب وہ اپنے خالق کو بھول جائے، جب وہ سمجھے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، تو اللہ اسے یوں مٹا دیتا ہے جیسے ہوا ریت کو اڑا دیتی ہے۔ یہ قصہ ہے قوم عاد کا، ایک ایسی قوم جو طاقت میں بے مثال تھی لیکن ایمان سے خالی تھی، جس کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے لیکن دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنے رب کو للکارا اور پھر ایک ایسی تباہی کا سامنا کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے قوم عاد کو کیسے تباہ کیا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہر دور کے لیے انتباہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد زمین پر ایک نئی قوم آباد ہوئی، قوم عاد۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان ایک علاقے میں رہتے تھے جسے احقاف کہا جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہاڑ بلند تھے، وادیاں وسیع تھیں اور زمین زرخیز تھی۔ لیکن قوم عاد عام انسانوں جیسی نہیں تھی، ان کے جسم عام انسانوں سے کئی گنا بڑے تھے۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ دور سے دیکھنے والا سمجھتا کہ کوئی پہاڑ چل رہا ہے۔ ان کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بھاری پتھروں کو یوں اٹھاتے جیسے کوئی کنکر ہو۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے بلند تھے کہ ایک گھوڑا اور سوار دونوں سیدھے اندر جا سکتے۔ انہوں نے اپنے شہر کا نام رکھا ارم ذات العماد، ستونوں والا شہر۔ یہ شہر کوئی معمولی آبادی نہیں تھا، یہ ایک ایسا شہر تھا جس کے محل آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بلند و بالا عمارتیں بنائیں۔ ان کے ستون اتنے مضبوط تھے کہ لگتا تھا جیسے زمین کو تھام رکھا ہو۔ ان کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، ان کی نہریں پانی سے بھری رہتی تھیں اور ان کے خزانے سونے چاندی سے لبریز تھے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی نہیں بلکہ ان کی سب سے بڑی بیماری تھی تکبر۔ وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہتے، ہم جیسا کوئی نہیں، ہماری طاقت لافانی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قدرت بھی ان کی غلام ہے۔ جب ہوا چلتی تو وہ ہنس کر کہتے، یہ ہوا ہمارے اشاروں پر چلتی ہے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہی ہوا ایک دن ان کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، شان و شوکت تھی، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بت بنا لیے تھے، پتھر کی مورتیاں جو نہ دیکھ سکتی تھیں نہ سن سکتی تھیں، نہ انہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ لیکن قوم عاد ان کے آگے سجدے کرتی، ان سے مانگتی اور سمجھتی کہ یہی ان کی عزت اور طاقت کا راز ہیں۔ جب بھی کوئی ان سے توحید کی بات کرتا، وہ فخر سے کہتے، یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ ہماری قوم صدیوں سے یہی راستہ اپناتی آئی ہے۔ ان کی محفلوں میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، ان کے بازاروں میں سچائی کی آواز دب جاتی تھی، ان کے محلات میں تکبر کی دیواریں تھیں جو کسی نصیحت کو اندر نہیں آنے دیتی تھیں۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، موت سے انکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ان جیسی عظیم قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم تباہ ہو سکتے ہیں، ناممکن۔ ہماری طاقت دیکھو، ہمارے محل دیکھو، ہماری دولت دیکھو۔ یہی وہ اندھا پن تھا جو انہیں ہلاکت کی طرف لے جا رہا تھا۔ مادی کامیابی تھی لیکن روحانی تاریکی تھی۔ زمین پر بادشاہی تھی لیکن دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا۔
और जब दिल से खौफ खुदा निकल जाए तो तबाही करीब आ जाती है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कौम आद की तरफ एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो उनकी अपनी कौम से थे, उनकी जबान बोलते थे, उनके दरमियान पल्ले बड़े थे, लोग उन्हें जानते थे, उनकी सच्चाई को पहचानते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के सरदार हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया, ऐ हूद, क्या तो चाहता है कि हम अब अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? हम तो अपनी ताकत पर यकीन रखते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से समझाया, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता हूं। कौम के एक बड़े सरदार ने तंज से कहा, हूद, तेरी बातों में दम होता तो हमारे महल कांप कर गिर चुके होते, दिखा अपना अजाब। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी, औलाद दी, बागात दिए, चश्मे दिए, क्या तुम शुक्र नहीं करोगे? क्या तुम नहीं डरते? लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया और कहा, हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे, यही हमारे आबा अजदाद का रास्ता है। दिन गुजरते गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके बाजारों में जाते, उनके महलों के दरवाजों पर खड़े होते, उनकी मजलिसों में जाकर दावत देते। कभी लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते, कभी सरदार कहते, हूद, हम समझते हैं तो पागल हो गया है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूं, मैं तो तमाम जहानों के रब की तरफ से एक रसूल हूं। एक दिन सरदारों ने चैलेंज किया, अगर तू सच्चा है तो अपने रब से कह कि हम पर अजाब ले आए, हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुटलाया, तू ही फैसला कर हमारे और उनके दरमियान। अब फैसले का वक्त करीब आ रहा था। कौम आद के सरदारों की सरकशी हद से बढ़ गई थी। वो अब खुलेआम हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। एक दिन उनके सबसे बड़े सरदार ने पूरी मजलिस में खड़े होकर कहा, ऐ हूद, तू कहता है कि अजाब आएगा, तू ले आ, हम यहां खड़े हैं, देखते हैं तेरा रब क्या कर सकता है। बाजारों में जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम गुजरते तो लोग हंसते हुए कहते, देखो ये आया हमें डराने वाला, कितने साल हो गए, अभी तक अजाब कहां है। महलों में उनके जवान फख्र से कहते, हमारी ताकत देखो, क्या कोई ताकत हमें हिला सकती है? हम अपने हाथों से आसमान के अजाब को रोक ले। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार उन्हें खबरदार किया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, लेकिन तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह को गवाह करके कहता हूं, अगर तुम बाज ना आए तो अजाब तुम्हें आ लेगा। लेकिन उन्होंने हंसकर जवाब दिया, हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। हमारा ख्याल है कि हमारे किसी माबूद ने तुझे बीमारी में मुब्तला कर दिया है। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथ ईमान लाने वालों को जमा किया। वो गिनती के चंद लोग थे जिन्होंने सच को कबूल किया था। उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि वो एक महफूज जगह चले जाएं, और फिर आसमान ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। अजाब से कुछ दिन पहले आकाफ की वादी में अजीब व गरीब वाकयात होने लगे। एक रात आसमान में एक गहरी आवाज गूंजी। न बादल गिरजा, न बिजली चमकी, लेकिन वादी में ऐसा लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। जानवर बेचैन हो गए, परिंदे अपने घोंसलों से उड़ गए। कौम आद के लोग ये आवाज सुनकर हंस पड़े। ये तो पहाड़ों की आवाज है, हमें क्या डर। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह रहमत की पुकार नहीं, ये तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, इतनी कम कि सिर्फ जानवर महसूस कर सके, लेकिन लोगों ने उसे भी नजरअंदाज किया और कहा, जमीन भी हमारी ताकत से कांपती है,
उन्हें नहीं पता था कि ये जमीन का आखिरी एतराज था। और फिर हकीकी आजमाइश शुरू हुई। खुश्क साली। आसमान से एक बूंद बारिश ना हुई। पहले महीने गुजरे, फिर साल, पहला साल। नदियां कम होने लगीं, बागात की सब्जी मान पड़ने लगी। लेकिन लोगों ने कहा, हम ताकतवर लोग हैं, ये मामूली सा मसला है। दूसरा साल। नहरें सूख गईं, फसलें जल गईं, प्यास ने उनकी जबानें सुखा दी, जानवर पानी की तलाश में मरने लगे। लेकिन फिर भी उनके सरदार कहते, हम हार नहीं मानेंगे, हमारे बाप दादा ने भी मुश्किलात देखी है। तीसरा साल। अब हालात बदतर हो चुके थे। जमीन पत्थर बन चुकी थी, खाली मटके दीवारों से टकराते, बच्चे प्यास से बुलबुलाते, माओं की आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे। कौमे आद की वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज जो कभी आसमान को ललकारती थी, अब गुम हो चुकी थी। कुछ लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए हूद, अपने रब से दुआ करके हम पर बारिश बरसाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, अब अजाब का वक्त करीब है। तीसरे साल के आखिर में एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक सियाह। कौमे आद के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और खुशी से चीखने लगे, देखो, बादल आ गए, बारिश आने वाली है। अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी, फरिश्ते की आवाज, ऐ कौमे आद, इन 3 बादलों में से एक चुन लो। लोग हैरान हुए। सरदार आपस में मशवरा करने लगे। एक ने कहा, सुर्ख बादल। दूसरे ने कहा, नहीं, सफेद बादल में बरकत है। लेकिन सबसे बड़े सरदार ने फख्र से कहा, काला बादल, ये देखो कितना घना है, इसमें जरूर पानी है। और उन्होंने सियाह बादल को चुन लिया। उन्हें क्या पता था कि इस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई। लोग खुशी से नाचने लगे, चीखने लगे, देखो, बारिश आ गई, हम बच गए। लेकिन ये पानी नहीं था, ये अजाब का तूफान था। उसी वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले चंद लोगों को अल्लाह ने एक महफूज गार में पनाह दी। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो वहां ठहर जाएं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार अपनी कौम को देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे रब, तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और फिर आसमान फट पड़ा। सियाह बादल ने अपना रंग बदला। उसमें से एक सर्द, तेज और खौफनाक हवा निकली, ऐसी हवा जो सब कुछ उखाड़ देने वाली थी। पहला झोंका आया, इतना तेज कि जमीन पर पड़ी धूल और पत्थर उड़ गए। लोग अपनी आंखें बंद करके चीखने लगे, उनके बाल हवा में लहराने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हवा में एक अजीब आवाज थी, जैसे वो उनका नाम मिटा रही हो, जैसे वो उनके वजूद को खत्म कर रही हो। दूसरा झोंका आया और जोर से। पेड़ जड़ों से उखड़ कर उड़ गए, जानवर हवा में उठकर दूर जा गिरे। कौमे आद के मजबूत मुजस्समे, जिन पर वो फख्र करते थे, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बागात, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। तीसरा झोंका, और भी खौफनाक। अब इंसान हवा में उठने लगे। मां ने अपने बच्चे को बाजुओं में दबाया, लेकिन आंधी ने उसे छीन लिया। बाप ने अपनी बेटी को थामना चाहा, लेकिन हवा उन दोनों को अलग करके ले गई। उनकी चीखें हवा की गरज में गुम हो गईं। वो लोग जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, अब तिनकों की तरह उड़ रहे थे। उनकी ताकत काम ना आई, उनके मजबूत जिस्म काम ना आए। उनके महल्लात, वो महल्लात जो सुतूनों पर आसमान से बातें करते थे, अब रेत के नीचे दब रहे थे।
पत्थर की दीवारें टूट कर गिर रही थीं। सोने के तख्त हवा में उड़कर टकरा रहे थे। वो अजीम शहर इरम ज़ातुल इमाद जमीन में धंसता जा रहा था। रात को लोग किसी चट्टान के पीछे छुपने की कोशिश करते, लेकिन हवा उन्हें वहां से भी निकाल लेती। वो एक दूसरे को पुकारते, लेकिन कोई आवाज सुनाई न देती। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल-हाक़ा में फरमाता है, और आद को तबाह किया गया सख्त गरजदार आंधी से। अल्लाह ने उसे उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल मुसल्लत किया। 7 रातें 8 दिन आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही, हवा चलती रही बगैर रुके, बगैर थमे। और जब हवा रुकी तो सिर्फ खामोशी थी। कौम आद के लोग जमीन पर बिखरे पड़े थे, जैसे खजूर के खोखले तने। उनके जिस्म थे लेकिन जान नहीं थी। उनका वजूद था लेकिन जिंदगी नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाता है, तो क्या तुम उनमें से किसी को बाकी देखते हो? नहीं, कोई नहीं बचा। सिर्फ रेत का समंदर, सिर्फ गिरे हुए तने, सिर्फ खामोशी। जब हुआ थमी तो एक गहरी खामोशी छा गई। न कोई चीख, न कोई आवाज, न कोई हरकत, सिर्फ रेत का लामतनाही समंदर और गिरे हुए तने जैसे लोगों के जिस्म। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले चंद लोग महफूज गार से बाहर निकले। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया था क्योंकि वो सच पर ईमान लाए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वादी की तरफ देखा। वो शहर जो कभी सुतूनों पर खड़ा था अब रेत में दब चुका था। वो महल्लात जो आसमान से बातें करते थे अब जमीन के नीचे थे। वो लोग जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, अब खाक में मिल चुके थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। ये वो लोग थे जिनके साथ वो पुले बड़े थे, जिन्हें वो सीधा रास्ता दिखाते रहे, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, ए मेरे रब, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। एक तहजीब मिट चुकी थी, एक कौम खत्म हो चुकी थी, सिर्फ सबक बाकी रह गया था। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे वो शहर दफन है, इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसका जिक्र किया और फरमाया, क्या तुमने ही नहीं देखा तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया, इरम ज़ातुल इमाद के साथ, जिस जैसा कोई शहर शहरों में नहीं बनाया गया। ये शहर एक गवाही के तौर पर महफूज रहा। आज जिसे खाली इलाका या रब उल खाली कहा जाता है, वहां कहीं गहराई में कौम आद के आसार दबे हुए हैं। कभी कभी रेत के टीलों में से पुराने खंडर नजर आते हैं, कभी बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जो किसी अजीम तामीर का हिस्सा थे। ये सब इस बात की गवाही है कि यहाँ कभी एक ताकतवर कौम रहती थी, लेकिन अल्लाह ने उनके शहर को इसलिए महफूज नहीं रखा कि लोग उसकी अजमत देखें, बल्कि इसलिए रखा कि लोग सबक हासिल करें। यह कहानी सिर्फ माजी की नहीं, यह हर दौर के लिए एक तंबीह है। कौम आद की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि ताकत, दौलत और शान और शौकत ये सब कुछ नहीं अगर दिल में अल्लाह का खौफ ना हो। कौम आद के पास सब कुछ था। उनके पास जिस्मानी ताकत थी, मादी वसाइल थे, अजीमुशान शहर था, लेकिन उनके पास ईमान नहीं था, अल्लाह की इताअत नहीं थी। और जब इंसान ये समझने लगे कि मैं सबसे ताकतवर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो समझ लो कि तबाही करीब है। आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर, अपनी हैसियत पर गुरूर करते हैं। वो समझते हैं कि वो हमेशा रहेंगे, लेकिन कौम आद का अंजाम याद रखो। एक हवा का झोंका काफी था उनकी सारी ताकत खत्म करने के लिए। अल्लाह का अदल यकीनी है, उसका फैसला आकर रहता है। तो ए देखने वाले, अपने आप से सवाल कर, क्या तेरे दिल में तकब्बुर तो नहीं? क्या तू अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है या अल्लाह पर? क्या तू समझता है कि तेरी दौलत, तेरी हैसियत तुझे बचा लेगी? कौम आद का शहर आज भी रेत के नीचे दफन है,
ایک یاد دہانی کے طور پر کہ عزت صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، کہ بقا صرف ایمان میں ہے، اور جو تکبر کرے اللہ اسے ضرور ذلیل کرتا ہے۔